But you have not come here to meet me. आप मेरी तरफ नहीं आए हैं, But you have not come here to meet the worship team. आप यहाँ पर एक आराधकों के जो वर्शिप लीडरों को देखने के लिए नहीं आए हैं, You have not come here to meet the Ablaze team. जो है उस अबलेस के जो है संकाटकों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। You've not come here to just sing some songs and be happy and go back. आप यूं ही कुछ गानों को गाकर ऐसा ही जाने के लिए नहीं आए हैं। You've not come here to just worship for some time and to listen to a nice sermon and clap and then go back. यूं ही कुछ गानों को गाकर आराधना कर कर कुछ प्रचार को सुनकर ऐसे ही जाने के लिए नहीं आए हैं। We've all gathered here to believe that God will send a revival in our land. हम इसीलिए आए हैं कि परमेश्वर इस जगह पर जो है एक बेदारी को वास्तव में भेजेंगे। I don't know if you would believe this, but let me tell you, we as a team, what we are praying for is nothing less than revival. हम एक इस टीम के संकाटक लोग एक ही चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, एक ही चीज के ऊपर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की एक बेदारी इस नगर में होए। And when Ambernath is revived, the whole of Thane district will be revived. जब अंबरनाथ में एक बेदारी होगा, पूरी तरीके से थाने शहर में भी एक बेदारी होगा। And when Thane district is revived, the whole of Maharashtra will be revived. जब थाने पर एक बेदारी होगा तब पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक बेदारी होगा। When Maharashtra is revived, the whole of India will be revived. जब महाराष्ट्र में बेदारी होगा, पूरे भारत देश में जो है एक बेदारी होगा। But it all begins with one brother, one sister who is set on fire for God. लेकिन इन सब की एक शुरुआत यहाँ से होती है, एक भाई और एक बहन जो परमेश्वर की आग से जो है पूरी हो जाती है। It does not happen in a conference. एक कॉन्फ्रेंस में यूं ही नहीं होता है। It does not happen in a revival meeting. एक बेदारी की मीटिंग में वह नहीं होता है। It does not happen in a fasting prayer. एक उपवास की प्रचार में नहीं होता है। It happens in the heart of a believer who is kindled by the fire of God. उस व्यक्ति के हृदय के अंदर होगा जो परमेश्वर की उस आग के लिए प्यासा है। It happens in the lives of every person who believes that God can use me for revival. उस व्यक्ति के जीवन में होगा जो अपने मन में विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे इस बेदारी में इस्तेमाल कर सकता है। And I really believe that our generation will see the greatest revival till this very मैं point. विश्वास करता हूँ कि हमारी पीढ़ी के लोग जग जो देखे नहीं है ऐसे एक बेदारी में वो शामिल हो जाएंगे। Is it because only 25 people understood that? ये इसीलिए है कि केवल 25 लोग ये बात को समझे हैं। Only 25 people said amen. केवल 25 लोगों ने आमेन कहा है। I don't care if you believe it or not, God will still send revival. आप विश्वास किए या ना किए, लेकिन परमेश्वर वास्तव में एक बेदारी को भेजेंगे। God will send revival in our generation. परमेश्वर हमारी इस पीढ़ी में ही एक बेदारी को भेजेंगे। Peter said, in the last days I shall pour out my spirit about 2000 years back. 2000 साल पहले यदि पत्रोस ने कहा कि आखिरी समय पर मैं मेरी आत्मा को उनके ऊपर उंडेलूंगा। If those were the last days, then this has to be the last seconds of God's calendar. अगर उस समय आखिरी दिन था तो यह आखिरी क्षण का समय अब है। And we are at this verge of the greatest move of God that the church, the history of church has ever seen. कलीसिया की इतिहास में पहले कभी देखे नहीं है ऐसी एक परमेश्वर की बेदारी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe that क्या God आप can विश्वास send a करता है revival? परमेश्वर एक बेदारी को भेजेंगे? You believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? The Bible says when 2 or 3 they agree on one thing and they pray. जब 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, God will do it for them. परमेश्वर वह उनके लिए करेंगे। God will turn the heavens upside down to do it for them. परमेश्वर स्वर्ग को खोल कर जो है उनके लिए वास्तव में कर देंगे। Any 2 or 3 in agreement with me that God will send revival? 2 या 3 मेरे साथ सहमत होते हैं कि परमेश्वर बेदारी को भेजेंगे कि नहीं? If you agree, now the next 5 minutes we are going to pray. अगर आप मेरे साथ सहमत होते हैं तो आगे के 5 मिनट जो है हम प्रार्थना में बिताने के लिए जा रहा है। You agree with me, right? आप मेरे साथ सहमत है ना? So this is what we are going to pray. हम ऐसे प्रार्थना करने जा रहा है। 2 prayers. 2 प्रार्थनाएं। God revive India. हे परमेश्वर इस भारत शहर को बेदारी लाए। Revive the country of India. जो है इस भारत देश को आप बेदारी जागृत करें। And start it in me. इसकी शुरुआत मेरे अंदर ही होए कर ऐसी प्रार्थना करना है। Amen.
Two things that we are going to pray for. God, revive India and begin the revival from me. दो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। पहली प्रार्थना है परमेश्वर भारत देश में बेदारी को भेजे, और दूसरी बात मेरे अंदर से उस बेदारी शुरू होए। And when you pray for yourself, you have to pray for your family. जब आप आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी परिवार के लिए भी आप प्रार्थना करना जरूरी When है। you pray for yourself, begin to pray for your church. जब आप आपकी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी जो है कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। When you begin to pray for yourself, begin to pray for your office, your college, your school that you attend. जब आप आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस के लिए भी आप प्रार्थना करना है। And when these units of that you are part of begins to be revived, ultimately the whole of India will be revived. जहां पर छोटी छोटी संगतियां है, वहां पर परमेश्वर की बेदारी जब शुरू होती है, पूरी तरीके से भारत वंश में बेदारी शुरू हो जाती है। Revival does not happen in a preaching or a sermon. जो है बेदारी एक प्रचार में या यूं ही वचनों में नहीं होती है। Revival happens when we catch the heart of God and we begin to pray over it. जब वह तब शुरू होती है जब परमेश्वर के मन को हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए शुरू कर जाते हैं। Can we begin to pray? Can we pray together for next 5 minutes? आगे के 5 मिनट जो है हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहा है। Every eyes closed, सारी every head आंखें बंद हो bowed, जाए, every mouth open up and begin to pray. God, send revival in India. God, send revival in my life. सारे मुंहों को खोलकर परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हमारे इस देश में, मेरे जीवन में बेदारी को आप भेजे। God, we are not satisfied with conferences. हम जो है कॉन्फ्रेंसों से तृप्त नहीं है। God, we are not satisfied with conventions. हम कन्वेंशनों से तृप्त नहीं है परमेश्वर। God, we are not satisfied with our churches. हमारी कलीसिया की आवाजों से, We are not satisfied with our churches. हमारी कलीसिया की आवाज, कलीसिया से हम तृप्त नहीं है। We want revival in India. हमें एक बेदारी इस भारत शहर में जरूरी है। And begin it in my heart, God. मेरे मन के अंदर ही वह शुरुआत करे परमेश्वर। And begin it in my life, God. मेरे जीवन में वह शुरू करे परमेश्वर। Come on, everybody, every heart. Come on, let's pray सारे मन together. जो है एक साथ मिलकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, सारी आवाजों को उठाते हुए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we desire for a revival. हम उस बेदारी की इच्छा करते हैं। As a church, Lord, together we desire for that revival. कलीसिया मिलकर हम उस बेदारी की इच्छा करते हैं परमेश्वर। Lord, so many times we get caught up with religion. कई बार हम जो है जाति के नाम पर जो है हम कई बार दबे हुए हैं। So many times we get caught up in routines. जो है कई बार जो है व्यस्त कारणों के कारण हम दब जाते हैं। So many times we get caught up with our work, God. हमारे काम के कारण हम कई बार दब गए हैं। And we tend to forget that you want to send revival in our land. हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर आप एक बेदारी इस शहर में भेजने जा रहा है। Lord God, send revival, God. एक Send बेदारी को revival. भेजे परमेश्वर। Break our hearts till we experience revival in us. हमारे मनों को तोड़ दे, कब तक हम जो उस बेदारी को अनुभव न करें परमेश्वर। Break our emotions till the time we don't experience revival. हमारे सारे मनोविचारों को आप तोड़ दे जब तक हम उस बेदारी को अनुभव न करें परमेश्वर। And when we experience revival, God, let it spread into our neighborhood. जो है कब हमारे उस शहर में एक बेदारी जो है नजदीक में जो है भेजेंगे आप। Lord, when we experience revival in our neighborhood, let it spread into our entire nation, God. जब हमारे नजदीकों में एक बेदारी होगा, जब पूरे राज्य में जो है उस बेदारी हो जाए परमेश्वर। Lord, as the church in Ambernath, we make this prophetic declaration that India will be saved by the blood of Jesus. जो है अंबरनाथ की इस कलीसिया मिलकर भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर की लहू के द्वारा पूरा भारत देश जो है वो छुटकारा प्राप्त करेंगे। That every state will bow down to the lordship of Jesus. सारे राज्य जो है उस चरवाहा के सामने जो है अपने घुटना को टेकेंगे। That every government will bow down to the name of Jesus. सारे सरकार जो है उस यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेकेंगे। Every crime and statistics will bow down to the name of Jesus. सारे हथियार की बातें, सारे अन्य बातें परमेश्वर के नाम पे सारे रुक जाएंगे। Every underworld dawns will bow down to the name of सारे Jesus. अंधकार की ताकत यीशु मसीह के नाम
नाम से घुटना टेकेंगे। Every fundamental groups that persecute Christians will bow down to the name of Jesus. सारे मसीह लोगों को सताने वाले सारे संगति और यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाएंगे। Everybody confessing that Jesus is Lord. सारे लोग कबूल करेंगे कि परमेश्वर ही यीशु मसीह ही प्रभु है कर। That is our desire, God. वही हमारा इच्छा है परमेश्वर। That is our prayer this morning. वही हमारी प्रार्थना है। We give you the praise. आपको ही महिमा देते हैं। We give you the glory. आपको महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। Guess what you should do? क्या करना है आपको? You should go back and continue praying this prayer till we experience revival. वापस जाकर फिर से यह प्रार्थना आप करना है तब तक जब तक करना है तब तक हम उस अनुभव न करें, उस बेदारी का अनुभव न करें। Go back and pray this in your church every Sunday morning. हर दिन संडे सुबह के समय यह आपकी कलीसिया में प्रार्थना करना है। Go back and pray this in your offices every day when you begin work. जब आप काम को शुरू करते हैं अपने जो है ऑफिसों में जाकर यह प्रार्थना को करना है। Lord, send revival in my office and begin it with me. हे परमेश्वर मेरे ऑफिस में एक बेदारी को भेजे और यह बेदारी मेरे द्वारा ही शुरू होना है। Lord, send revival in my house and begin it with me. मेरे घर पर एक बेदारी को भेजे और इसका शुरुआत मेरे द्वारा ही होना है परमेश्वर। Amen. As we were praying, God said there are many powers that are coming crashing down in the land of Ambernath. जो है ऐसे जब प्रार्थना करने के समय परमेश्वर मुझसे ऐसा कहा कि ऐसे कई शक्तियां जो है इस अंबरनाथ शहर में टूट जा रहा है। There are powers that is controlling the church. ऐसी शक्तियां हैं जो कलीसिया को नियंत्रण कर रही है। I'm not talking about what is happening in the world. इस दुनिया में जो हो रही है उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। I'm talking about those powers of darkness that is controlling the church. उस अंधकार की सामर्थ के बारे में कहता हूँ जो कलीसिया को जो है नियंत्रण कर रहा है। Those powers of legalism and religiosity. जो है उस धर्म के विषय पर और अन्य विषय पर जो कलीसिया में राज कर रहे हैं उसके विषय उस विषय पर। Those powers of immorality. जो है उस इमोरल तरीके से या फिर अन्य तरीके से कलीसिया के अंदर जो राज कर रहा है उसके ऊपर। Those powers of Jezebel, the spirit of Jezebel that is coming crashing down. जो है कलीसिया के अंदर उस यिसबेल की आत्मा जो है वो टूट जा रहा है। And the Lord says, I will do that in these 3 days. This is the primary thing that I will do. परमेश्वर कहता है ये 3 दिन में मैं उसे तोड़ दूंगा कर। That every power that holds your church captive will break in Jesus' mighty name. सारे उस कलीसिया के जो है उस दबाव में लेके आने वाले उस सारे शक्तियों को मैं तोड़ दूंगा कर परमेश्वर कहता है। If you will believe, God will make you part of that process. यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। If you would believe, God will use you in your church for revival. यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए आपको ही परमेश्वर आपकी कलीसिया में इस्तेमाल करेंगे। You might not be the pastor in the church. आप शायद कलीसिया का पासवान नहीं हो सकता है। You might not be the elder in the church. शायद आप कलीसिया के प्राचीन नहीं हो सकता है। But if you believe that God can send revival in your church, यदि God would आप use you. विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको ही आपकी कलीसिया में बेदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। Amen. Amen. Are we ready to study a bit on revival? क्या हम बेदारी के लिए विषय में सीखने के लिए तैयार है? Revival happens when there is a dynamic combination of the word and the spirit. जो है जब इस बेदारी जो है उस दो जो विषयों के ऊपर निर्भर है, जब इस दुनिया और जो है The word and the spirit. जब परमेश्वर की वचन और आत्मा के बीच में जुड़ जाती है। When there is a mixture, a dynamic mixture at the right time between the Spirit of God and the Word that God sends, there is a revival birth there. जब परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आत्मा के बीच में एक मिलन हो जाती है तब जो है वहाँ पर एक बेदारी हो जाती है। Can I give you a few examples? कुछ उदाहरण दे सकता हूँ? In the beginning, the earth was void and empty. पर शुरुआत में जो है आदि के दिनों में जो है इस पृथ्वी जो है शून्य थी और यूं ही ऐसा पड़ा हुआ था। And the Spirit of God was hovering over the waters. परमेश्वर की आत्मा जो है पानी के ऊपर जो है फिर रहा था। And at the right time, the Lord said, "Let there be light." तब उसी समय परमेश्वर ने कहा कि वहां पर रोशनी हो जाए कर। And that combination of God's word and the Spirit already working in that place brought forth this beautiful
universe that we see right now. जब परमेश्वर की वचन और उस आत्मा जो कार्य कर रहा था दोनों जब मिल गए तब वहां पर एक संसार की रचना हो गई। When Moses on the mountain saw God and heard from the burning bush. जब मूसा ने पहाड़ पर परमेश्वर की उस आवाज को उस आग के बीच में से जब सुनाई दी, he received a word from God. वह परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, But that was not enough. वो काफी नहीं था। And he moved in the power of the Holy Spirit in Egypt. जो है उस परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में वह इजिप्ट में जो है चला गया, मिस्र में चलते गया। There were signs and wonders and miracles that the Holy Spirit brought forth. चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामें फिर परमेश्वर उसके द्वारा करता रहा। And that brought the greatest revival in that history. जो है उस इतिहास में सबसे बड़ी बेदारी उस समय हमें दिखाई देती है। In the New Testament church, नए नियम की कलीसिया में the disciples, they had already encountered Jesus, the Word of God. जो है मुलाकात जो है यीशु मसीह के साथ चेले लोगों को एक मुठभेड़ थी। They had already received the person of Jesus. जो है यीशु मसीह को वे स्वीकार किए थे। They had not yet received the Holy Spirit though. अब तक वे परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त नहीं किए थे। They believed in Jesus. वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए। They talked about Jesus. वे यीशु मसीह के बारे में सीखे। They preached Jesus. यीशु मसीह का प्रचार किया। But when they received the Holy Spirit, जब उस दिन जब वे परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किए, when the Word and the Spirit worked in their hearts together, जब परमेश्वर की आत्मा और वचन साथ मिलकर उनके हृदय में जब कार्य किया, that is when the first century church was born and there was a revival. तब उसी समय था पहले सदी की जो है कलीसिया जन्म हुई और वहां से बेदारी शुरू हुई। There is a group of Christians who overemphasize the Spirit. जो कई बार ऐसे झुंड मसीह झुंड है जो परमेश्वर की आत्मा के ऊपर ज्यादा दबाव देते हैं। There is a group of Christians who only teach the Word of God. कुछ ऐसे झुंड के लोग हैं जो केवल वचन को ही सिखाते हैं। But revival will not come till both of this combine together and the word is preached in the power of the Holy Spirit. जो है बेदारी तब तक नहीं होगी जब परमेश्वर की आत्मा और वचन साथ मिलकर जो है एक कार्य को प्रकट करे। Can I explain this from the Word of God this morning? क्या This evening? शाम की समय मैं यह बातें वचन के द्वारा आपको बता सकता हूँ? I'm preaching from the book of Jonah. योना की किताब में से मैं प्रचार कर रहा हूँ। Jonah chapter 1. योना की किताब उसका पहला अध्याय। And you don't have to read it from your Bibles. I will read it from my Bible. जो है आप आपके बाइबल से नहीं पढ़ना है, मैं मेरे बाइबल से पढ़ लूंगा। This is what the Bible says. यही वचन कहता है। Now the word of God came to Jonah, son of Amittai. जो है परमेश्वर की वचन अमिताई का पुत्र योना के पास पहुंचा। The word of God came to Jonah. परमेश्वर की वचन यूना के पास पहुंचा कर पहले वाक्य में पढ़ते हैं। Every revival begins with that one word that God sends to his people. हर एक बेदारी शुरू हो जाती है तब जब परमेश्वर की वचन उनके जनों के जीवन में आ जाती है। Every revival happens when you receive a word from God for yourself, for your church or for your land. वह बेदारी तब शुरू हो जाती है तब परमेश्वर की ओर से जब आप आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए और इस देश के लिए एक वचन को स्वीकार करते हैं। How do we receive a word from God, you may ask? किस तरीके से हम परमेश्वर से वचन को स्वीकार करेंगे कर आप शायद सवाल करेंगे। This is how you receive a word from God. इस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे। This when you sit in his presence. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, when you pursue God, जब आप परमेश्वर के खोज में लगे रहते हो, when you're pursuing after his heart, जब आप परमेश्वर की उस मन के पीछे लगे हुए हैं, when you're seeking him without any agendas, कोई बिना कोई बातों के रखते हुए परमेश्वर को जब आप खोज रहे हो, when you're in his presence 24/7 asking him for a word from him, 24 घंटे 7 दिन आप परमेश्वर के वचन के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर से, that is when God releases a word for you. वही समय है जब परमेश्वर आपके लिए एक वचन को भेजेंगे। He might speak through a prophet. शायद एक भविष्यवक्ता के द्वारा प्रचार कर आपके लिए एक वाणी होगा। He might speak through that word that you read in the morning. शायद सुबह के दिन पढ़े हुए उस वचन से आपके लिए होगा।
He might speak through an incident that happened in your life. एक घटना आपके जीवन में हुई है, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे. He might speak by the still small voice inside your spirit. उस धीमी गति से जो आवाज आपके अंतःकरण से निकलती है, उसके द्वारा परमेश्वर बात कर सकता है. He might speak through a loud and audible voice into your ears. एक आवाज, ऊंची आवाज में भी परमेश्वर आपके कानों पर सुना सकता है वचन. But whichever way he speaks, लेकिन किसी भी माध्यम से वो सुनाए, when his word comes, your life will never be the same again. जब परमेश्वर की वचन आपके जीवन में आ जाती है, आप उसी समान नहीं रहेंगे बल्कि अलग व्यक्ति हो जाएंगे. When you receive that word from God into your life will never ever be the same. जब आप परमेश्वर की वचन को स्वीकार कर अपने जीवन में अपना लेंगे, तो आपका जीवन कभी एक समान नहीं रहेंगे. That is why it is so important that we don't just listen to sermons. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम केवल वचन को सुनना नहीं है. We all enjoy sermons. हम कई बार जो है उस प्रचार को हमें अच्छा लगता है. We all like to go to conferences and conventions and listen to great speakers preach the word of God. हम कई बार ऐसे कन्वेंशनों में, ऐसे कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, लोग प्रचार करते हुए हम देखते हैं, सुनते हैं. But some, not always, but sometimes the word of God will come out of that person and come and speak right into your spirit. कई बार ऐसा हो जाता है, परमेश्वर की वचन उस दास के मुंह से निकलती है और वो आपके जीवन में आकर कार्य करती है, आपसे बात करती है. It's not a sermon, it will be